Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. Today we will start a new module, and the name of this chapter is the French Revolution. In starting, we will give a basic introduction about the French Revolution, that what was French Revolution and when it was occurred, and why there is a need to learn the French Revolution. As we know that the world's first revolution is also known as the French Revolution. It was taken places on 1789. It was the first time when the people start knowing about how to fight against their regime. This revolution is basically against the absolute monarch that was exist in almost all of the countries during this 18th century in Europe. Okay? So under this particular chapter we will discuss about a few basic things and the complete detail about the revolution. What was the reason of the revolutions, why this revolution taken places, what are the events in this particular revolutions, etc. Okay? So let's start with the very beginning. The first topic is the old regime. Okay, in the 18th century, in the most of the European country, the old regime was have a social political system which existed in the most of the European during 18th century. The countries were ruled was absolutism. The monarch had absolute control over the government. देखिए, at that time the complete control was being done by the monarch only. Monarch का मतलब यहाँ पर है राजा से, यानी absolute monarchical government was exist everywhere in the Europe in 18th century. ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्च का यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है कि पूरी तरीक़ों से सारी की सारी चीज़ें गवर्निंग जितनी भी बॉडीज़ हैं, these all things was under the control of king or monarch. ठीक है, फिर there is two types of the classes of the people. The first one is privileged or the second one is unprivileged people. The privileged people are those people who get advantages by birth. आप देख सकते हो unprivileged वो होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, टैक्सेस को पे कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको बैड ट्रीटमेंट मिल रहा है. और privileged वो हैं those who are not going to pay any tax and they will be treated well. So the whole society was at that time divided into the three states. This was the major reason of the revolutions कि जो पूरी सोसाइटी थी वो लगभग 3 स्टेट्स में डिवाइड थी और उनमें से एक ही स्टेट्स में रहने वाली एक ही स्टेट्स के ग्रुप के लोगों को अधिकार था टैक्स देने का, बाकी सब बिना टैक्स के एंजॉय करते थे. ठीक है, तो देखिए इट वाज डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज में हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ चर्च आते थे जिनको हम क्लर्जी बोलते थे और प्रिविलेज्ड क्लास होते थे. ठीक है, यानी जो हाई रिच पीपल्स थे वो फर्स्ट स्टेज में जाते थे. सेकंड में नोबिलिटी और प्रिविलेज्ड क्लास था क्योंकि नोबिलिटीज़ भी वो होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, जो ज़मींदार लोग हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स थे. थर्ड स्टेज वो स्टेज थी जिसमें जिस कैटेगरी में आने वाले लोगों को टैक्स पे करना पड़ता. दे वर अंडर प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड पीपल. Everyone else from the peasants and countryside to wealthy both sides, merchants and cities goes under this particular category. यानी इस particular category में वो सारे के सारे लोग जाते थे. Now here we will see a detailed discuss about the 3 states. See the first stage जिसकी लगभग population 1.3000 थी और उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग प्रिविलेज्ड ग्रुप भी बोलते थे और उनको किस चीज़ से एग्जप्शन मिला हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है. दे वर गेटिंग द एग्जप्शंस टू पे द टैक्सेस एंड सब्जेक्ट टू द चर्च लॉ रेदर देन सिविल लॉ. उनके ऊपर जितने भी लॉज इम्पोज हुआ करते थे वो सिविल लॉज नहीं थे, वो चर्च के अपने लॉज थे. ठीक है, इसके अलावा उनका जो बर्डन था वो केवल मॉरल ऑब्लिगेशंस था, गरीबों को परेशान करने का काम था और ओल्ड रिजाइम और मोनार्च के साथ था. सेकेंड स्टेज के लगभग 110 मिलियंस के आसपास पॉपुलेशन थी जिनका काम कलेक्शन करने का होता था, जो कि टैक्स को कलेक्ट करते थे और उसके अलावा फेल्ड ड्यूज़ है और मोनोपोली मिलिट्रीज़ है और अदर थिंग्स को वो बेसिकली कलेक्ट करते थे. ठीक है, और ये भी वो कैटेगरी थी जो टैक्स पे नहीं करता था. ठीक है, और उनको मोनार्च और ओल्ड रिजाइम का सपोर्ट भी मिला हुआ था. थर्ड स्टेज जो था जिसकी पॉपुलेशन लगभग 25,000 के आसपास थी, वो पॉपुलेशन में वो सारे लोग आते थे, आर्टिशंस, स्मॉल बिजनेसमैन, वर्कर्स, मर्चेंट, पीजेंट, सारे के सारे आते थे.
जिनको किसी भी लेवल की कोई भी प्रिविलेज्ड नहीं दी हुई थी, दे आर अनप्रिविलेज्ड पर्सन, ठीक है। और दे वॉज नॉट गिवन एनी एग्जप्शंस फ्रॉम द टैक्स, मीन्स दे हैव टू पे द टैक्सेस। और उनको केवल एक टाइप के टैक्सेस नहीं देने होते थे, बल्कि मल्टीपल टाइप ऑफ द टैक्स दे नीड टू पे। जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था जिसका नाम था तिथि। जो तिथि नाम का टैक्स था, ताइथी जिसको भी पढ़ते हैं, इस तिथि नाम का टैक्स था चर्च का, जो कि टोटल इनकम का 1/10 उनको पे करना पड़ता था इन द नेम ऑफ चर्च और इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसके अलावा फेड्यूल ड्यूज़ है ना, और बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो थे वो पर्टिकुलर ग्रुप लेते थे। तो आप देखिए सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट्स में बढ़ गई है। 2 ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है, गवर्नमेंट भी फ़ायदा दे रही है, टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, और एक ऐसी कैटेगरी है जो कि फ़ायदा नहीं ले रहा है, जो कि अनप्रिविलेज्ड कैटेगरी की ग्रुप में आ गया। तो ऑब्वियसली दे विल रिवोल्ट। तो जो भी रेवोल्यूशन हुआ उसमें मेन एक्टिव पार्टिसिपेशन जो था वो 3rd स्टेट की सोसाइटी का। ओके, thank you very much. Rest portion of the chapter we will discuss in the next video.